Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 16 of Pakistan Studies for grade 9. This is your Pakistan Studies book. So students, open your Pakistan Studies book. Today our topic is General Ayub Khan in martial law of 1958. Page number 74 and 75. First of all, open page number 74. Open page number 74. General Ayub Khan and martial law of 1958. Unfortunately, the 1956 constitution, which was framed after 9 years of the effort, didn't last longer than 2.5 years. How many years? 2.5 years. No general election was held under 1956 constitution and lasted no longer than 2.5 years. Major General Iskandar Mirza had taken over as acting Governor General in August 1955 when Ghulam Muhammad became too unwell to continue. Mirza was confirmed as Governor General in October 1955 on the adoption of the new constitution or the first constitution on the country, on which date, on 23rd March 1956, he assumed the office of the president under the new constitution. Mean the name of the post of the Governor General changed into president. So Iskandar Mirza became the first president of Pakistan under 1956 constitution. Now you have to remember that the first martial law was imposed by whom? By Iskandar Mirza, not by Ayub Khan. Ayub Khan ने martial law नहीं लगाया था. Who imposed first martial law in the country? Iskandar Mirza. Okay. Now, the first president of Pakistan, Iskandar Mirza, for his personal interests, to prolong his power, he abrogated the constitution of 1956. अपनी पर्सनल पावर को ज्यादा करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए उसने क्या किया? 1956 कॉन्स्टिट्यूशन का अब्रोगेट किया, खत्म कर दिया. जब कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया, यानी क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि इसमें 1958 में इलेक्शन आने वाली थी और वो समझते थे कि अगर मैं इनको ख़त्म करूँ तो इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे और मेरी जो रूलिंग होगी, जो रूलिंग की डेट होगी, ईयर होगी, वो एक्सटेंशन होगी. इसी वजह से अपनी पर्सनल पावर को, to prolong his personal power, his personal interest, he imposed martial law in the country on which date? On 7 October 1958. And now that time of the army chief general in that time was General Ayub Khan. He was appointed as a chief martial law administrator. What is mean by martial law? Martial law mean ruling of army की जो ruling होती है. Now what is mean by chief martial law administrator? जो मार्शल लॉ होती है, रूलिंग होती है, उसी की जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो सियासी इंतजाम को चलाते, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते, उसी चीफ को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं. नाउ अयूब खान at that time of army chief general was appointed as chief martial law administrator. Now on 20 days later he forced Iskandar Mirza to resign, and now on 27th October 1958 he assumed the power. Now come to page number 74. General Ayub Khan and martial law of 1958. Martial law means ruling of army, फौज की हुकूमत. The first martial law of Pakistan, Iskandar Mirza, only for his personal interest, abrogated the constitution of 1956. First president of Pakistan के थे. Who was the first president of Pakistan? Iskandar Mirza. And also last governor general.
उसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, ताकि मैं बरकरार रहूं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसने 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे। He promulgated the martial law in the country on 7 अक्टूबर 19। उसने इम्पोज कर दिया, लगा दिया मार्शल लॉ कंट्री में। फौज की हुकूमत जो होती है, मार्शल लॉ कब लगाया? 7 अक्टूबर 1958, फर्स्ट मार्शल लॉ जो हमारी यहाँ पर होती है ना, उसने मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को लगा दिया। किसने? सिकंदर मिर्जा ने। ये बात याद रखें, सिकंदर मिर्जा imposed the martial law in the country, not Ayub Khan. Okay. Now the Army Chief General Ayub Khan was appointed as a Chief Martial Law Administrator. Chief Martial Law Administrator who became he appointed as Chief General Ayub Khan at time of Army Chief General, and but only 20 days later General Ayub Khan forced Sikandar Mirza to resign mean istifa the office of the president and was exiled mean जलावतन करना। उसकी 20 दिन बाद माशाल्लाह की 7 अक्टूबर की सिकंदर मिर्जा को, जिसने मार्शल लॉ लगाया था और अयूब खान को एज ए अपॉइंट किया चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को, 20 दिन बाद अयूब खान ने इनको रिजाइन के लिए मजबूर कर दिया और उसे ऑफिस छोड़नी पड़ी, प्रेसिडेंटशिप की सदारत छोड़नी पड़ी और वो क्या हो गया? एग्जाइल, जलावतन किया गया इनको। और खुद उसने एज्यूम किया पावर को कब? 27 अक्टूबर 1958 को। कब? 27 अक्टूबर 1958 को, 20 डेज बाद उनको हटाया गया प्रेसिडेंट की ओहदे से। Now come to the causes of promulgation of martial law in Pakistan. पाकिस्तान में मार्शल लॉ की असबाब क्या है? मार्शल लॉ की असबाब क्या थी? फर्स्ट मार्शल लॉ जो थी उसकी असबाब क्या है? तो इसकी martial law was promulgated in Pakistan on 7th October 1958 due to the following causes. Following causes की वजह से यहाँ पर मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को इम्पोज हुआ। उसकी जो काजेज थी, फर्स्ट काज वाज वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। वर्स्ट मीन जो खराब होते हैं, बदतरीन हालात थे, इकोनॉमिक माशी हालात कंट्री के, इसी वजह से ये। Remember that political stability has direct relation with economic stability. When our country is politically stable, that country will directly economic stable. एक कंट्री की जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो वो डायरेक्टली रिलेशन करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। तो जब एक कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, कानून होता है, सब कुछ सही तरीके से चलता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो भी स्टेबल होता है। इन्वेस्टर के लिए सही माहौल होता है, एनवायरनमेंट होती है, ताजर के लिए, हर किस्म के लिए, कि वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो लॉ के मुताबिक हर चीज़ चलती है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या थी? वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, वो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी कंट्री में, बैड इन द कंट्री डे बाय डे। Now Pakistan is in agriculture was the high claim of the government of that time. Of the government has high claim that Pakistan is an agriculture country. उसका क्लेम था गवर्नमेंट का कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री, बावजूद इसके that the claim of the that time of the government, many items of food were imported from many countries. उस वक्त मुख्तलिफ कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे थे, मंगवाते थे अपने मुल्क में, जो कि एक साइट पर जो हम इंपोर्ट कर रहे थे फूड आइटम, तो एक साइट पर क्या थी? वेरी कॉस्टली थी। तो दूसरी साइट पर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, लोगों तक पहुंचाने की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो वो भी सही तरीके से नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों में परेशानी पैदा, वरीज वर फाउंड ड्यू टू दिस, फ्रॉम विच food items, the distribution of food item. Beside this, हम कहते एक पॉलिटिकल अनस्टेबल था, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं थी।
तो यहाँ पर स्मगलिंग का काम उरूज पर होगा। स्मगलिंग की वजह से, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से और होर्डिंग की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन और भी खराब होती गई। नाउ बिसाइड द स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग जो थी, ब्लैक मार्केटिंग जो चोरी बाजार था, बाजार से चीज़ों का गायब होना, और वो फिर क्या होता है वहाँ पर वो हर्ट कर रहा है। एंड होर्डिंग वर आल्सो एट द पीक, जो मार्केट से गायब होती मतलब इसको जहीरंदोज करते थे, जमा करते थे, ताकि जब उसकी कीमत बढ़ जाए तो वो उस टाइम इनको निकाल कर मार्केट में फिर वो जो कम नर्ख में लिए थे, जो सस्ती लिए थे, फिर इनको जमा करके जब वो महंगी हो जाती है तो वो मार्केट में उन चीज़ों को बेचते हैं। डेट्स वर एट द पीक ड्यू टू पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, द इकोनॉमिक condition become unstable in that time. Smuggling in the country had adopted the shape of business. While smugglers were supported by effective people, जो स्मगलिंग थी कंट्री की, उसने एक बिजनेस के शेप इख्तियार किया, एक कारोबार का शक्ल इख्तियार किया। इसी कारोबार को जो स्मगलर्स थी ना, इसी को बाअसर लोग बैक कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। नाउ विद द सपोर्ट ऑफ द बिग पीपल in that time, they supported the smugglers. And Karachi was the capital of city which every kind of corruption was at peak in Karachi. जो कराची कैपिटल था, उन्हीं जो करप्शन थी, जो स्मगलिंग थी, जो हर चीज की जो वहां पर चीज थी वो उरूज पर थी उस वक्त। तो इन्हीं वजूहात के बेस पर कि एक तो फूड आइटम्स नहीं थी कंट्री में, इकोनॉमिक कंडीशन उसी वजह से कि वो ख़राब हो गई, कि वो कॉस्टली हमें आ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन की वो भी ख़राब थी, स्मगलिंग, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग का काम उरूज पर था। इसी वजह से यहाँ पर मार्शल लॉ आया। Due to the worst economic condition of the country. That relation of political stability with economic stability, that when a country is politically stable, that country will directly economic stable. In that time, the claim of the government was that Pakistan is an agriculture country, but due to this claim, many agriculture items were imported, which were very costly. जो बड़ी उसकी वो कॉस्टली हमें होती थी, उसकी कीमत बढ़ जाती जो हम दूसरे मालिक से मंगवाते हैं। Remember that when a country has more import than her export, जब उनकी इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से, यानी इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम हो, तो इसकी इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ता है। Now in that time, the hoarding, black marketing and smuggling were on the peak, and Karachi was the center of every kind of corruption in that time. Due to this prevailing situation, first martial law was imposed in the country. Now come to second reason, political disorder. Right from the time when Pakistan came into being, people together with political leaders made efforts to move the country toward development. But up to 1957, political condition of the country had been much deteriorated. पाकिस्तान की मारिज वजूद में आने के साथ ही अवाम और सियासी रहनुमा ने मिलकर मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिश की। made efforts to move the country towards development. उसने कोशिश की, अवाम ने भी और लीडर्स ने भी, पाकिस्तान की डेवलपमेंट की तरफ। But up to 1957, political condition of the country had become much deteriorated. इसी कोशिश की थी, स्टार्ट किया हम, लेकिन at 1957 में हालात वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बिगड़ गए थे। And the position of the political differences was that different ministers of the government were not functioning satisfactory. और सियासी कशमकश का ये आलम था कि हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों में इत्मीनान बख्श काम नहीं हो रहा था। ये पॉलिटिकल ये था कि वहाँ पर
जो डिफरेंट मिनिस्ट्री हैं वहाँ की वो इत्मीनान बख्श काम नहीं कर, वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे थे, जो जिसका काम था वो सही तरीके से नहीं करता था। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री वर चेंजिंग एवरी डे एंड द रूलर्स वर पोस्टपोनिंग इलेक्शन इन द कंट्री फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। पॉलिटिकली डिसऑर्डर ये भी था कि आए रोज वजीर आजम को बदलते रहे। ये सिकंदर मिर्जा ने लास्ट 2 ईयर्स में 56 से लेकर 58 तक 4 वजीर आजम को हटाया गया। कौन सी जमहूरियत में होता है, कौन सी सिस्टम में ये होता है? हम बराए नाम सिस्टम चला रहे थे, हम तो दावा कर रहे थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम की, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में तो वजीर आजम के साथ इख्तियारात होते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल डिसऑर्डर थी। वजीर आजम आए दिन वो बदलते रहे, सिर्फ 4 वजीर आजम सिर्फ 2 साल में तब्दील हो गए। इसी वजह से पॉलिटिकल डिसऑर्डर स्टार्ट था कंट्री में। और इसके अलावा क्या था? द रूलर्स वर पोस्टपोनिंग मुलतवी करना इलेक्शन इन द कंट्री फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, और मुल्क में इलेक्शन को भी ये मुलतवी करते रहे, पोस्टपोन कर रहे थे, ताकि हमारी जो पावर हो वो प्रोलॉन्ग रहे। सिकंदर मिर्जा ने फिर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को भी ख़त्म कर, जो नए इलेक्शन आने वाले थे तो इसने पोस्टपोन कर दिया उसी ही इलेक्शन को। जब इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया तो ये भी उस वक्त के पॉलिटिकल डिसऑर्डर में आते हैं कि पॉलिटिकल डिसऑर्डर था वहाँ पर। Muslim League, the founding party of Pakistan, was defeated in election of 1954 in East Pakistan. 1954 में East Pakistan after 1947, after independence, Pakistan was divided into 2 wings, East wings and East wings. 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1 यूनिट फार्मूला भी अप्लाई किया था, जो 4 प्रोविंस थे, वेस्ट पाकिस्तान की केपी, पंजाब, सिंध और इनको मिलाकर एक वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया, एक यूनिट बनाया गया। और जो दूसरी विंग्स थी वो ईस्ट, जो बंगाल था, जो आजकल बांग्लादेश है, फिर वो 1971 में हमसे जुदा हो गया। उसकी रीज़न भी हम पढ़ेंगे। तो जो फाउंडिंग पार्टी थी मुस्लिम लीग, उनको शिकस्त हो गई 1954 इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान में। इसी के अलावा जो इंस्टेड द पीपल, द पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी, ये पार्टी नाम याद रखिए, पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी, फॉर्म विद द ब्लेसिंग ऑफ सिकंदर मिर्जा, वाज एक्टिव इन द स्ट्रगल, जो कि किसकी वजह से, किसकी ब्लेसिंग की वजह से बनी थी पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी? सिकंदर मिर्जा की वजह से। और वो अवाम की बजाय क्या कर रहे, इंस्टेड ऑफ पीपल, वो अवाम की इंटरेस्ट को नहीं देते, उनकी मफाद को नहीं देखते थे, बल्कि अपने लिए अपनी पावर को गेन करने के लिए वो कोशिश कर रहे थे कि हमारी पावर, हम पावर में रहे। There was nominal parliamentary system in the country, but the prime minister had no status. Nominal head, बराए नाम था सिर्फ। वो जो प्राइम मिनिस्टर था पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम प्राइम मिनिस्टर हैज वेस्ट authority was vested in the hand of prime minister, but now in Pakistan, in that time of Pakistan, prime minister was यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री थी सिस्टम थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वो बराए नाम थी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम वेयर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, जहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम हो, जहाँ पर वजीर आजम के साथ इख्तियारात हो। लेकिन हम क्या कहते हैं? सिर्फ नॉमिनल पार्लियामेंट्री सिस्टम किया, वजीर आजम की कोई हैसियत ही नहीं थी। Politicians were exploiting the poor people by verbal claim of Islam and democracy. जो सियासतदान थे एक्सप्लॉइट, इस्तेहसाल कर रहे थे, एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट थी गरीब लोगों की, किस? बाय वर्बल क्लेम ऑफ इस्लाम
इस्लाम और जमहूरियत के नाम पर लोगों की एक्सप्लॉयटेशन थी, गरीब लोगों की। This state of affairs were creating the tension in both part East and West Pakistan. इसी स्टेट की जो अफेयर्स थी, इसी तरह जो हमने पढ़े, इसी वजह से यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो गई। दोनों पार्ट्स डिस्टेंस क्रिएट हो गई, फर्दर ये एक दूसरे से जो फर्दर डिस्टेंस पर रहे, इनके दरमियान फासले और भी बढ़े, जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था, इसी कंडीशन की वजह से। और इसी वजह से एट लास्ट द रिजल्ट ऑफ सच पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट केम इन द शेप ऑफ मार्शल लॉ। और जो मिसमैनेजमेंट थी पॉलिटिकल की, उस वो किस शेप में आ गई कंट्री में? एज ए शेप ऑफ मार्शल लॉ। Now, due to the political disorder was also one of the causes for promulgation for the imposition of the martial law in the country. Now, in that time, many ministers were changing. Last 2 years, from 1956 to 1958, four prime minister were changing in that time. And we have said that in Pakistan, there was nominal parliamentary system, कि हम इसे कह दें कि यहाँ पर nominal parliamentary, बराए नाम parliamentary system था। What is mean by parliamentary system? That type of system where prime minister has vast authority and he will be the head of the government, जहाँ पर ज्यादा इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास होते हैं और सदर सिर्फ बराए नाम होता है। लेकिन यहाँ पर तो उलट है, यहाँ पर तो कोई स्टेटस नहीं था, नो स्टेटस फॉर द प्राइम मिनिस्टर इन दैट टाइम। नाउ इलेक्शन पोस्टपोनिंग, इलेक्शन मुलतवी होते रहे, नया इलेक्शन। नाउ द फाउंडिंग पार्टी मुस्लिम लीग was defeated in the election of 1954 in ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में जो 1954 में थी, यहाँ पर मुस्लिम लीग को भी शिकस्त हो गई। इलेक्शन मुलतवी होते रहे, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे, यहाँ पर मुस्लिम लीग को शिकस्त हो गई। नेक्स्ट, पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी, यहाँ पर पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी वजूद में आ गई। किसकी सपोर्ट की वजह से? सिकंदर मिर्जा। और वो अवाम की बजाय अपनी पावर के लिए स्ट्रगल कर रही थी, इसी वजह से। नॉमिनल पार्लियामेंट्री सिस्टम था, बराए नाम पार्लियामेंट्री सिस्टम था। Poor people were exploited with the name of Islam and democracy. गरीब लोगों की इख्तिसाल थी, एक्सप्लॉयटेशन थी इस्लाम और जमहूरियत के नाम पर। इसी वजह से, इन मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, इसी सिचुएशन में दोनों जो विंग्स थी, ईस्ट और वेस्ट विंग में सिचुएशन खराब हो गई ड्यू टू पॉलिटिकल डिसऑर्डर। एंड ड्यू टू दिस रीजन मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन द कंट्री। होमवर्क अपने साथ नोट कर लें, जितनी हमने ये 2 काजेस पढ़े हैं मार्शल लॉ के और जो हिस्ट्री है इसकी, ये आप लर्न करें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।